Fine. So today we'll continue the remaining part of the chapter, population. Okay. So in this part, we'll study the various factors which are responsible for the growth of population. Okay. If the population is growing very rapidly, then what is the reason behind that? Why is the population growing with such a fast pace? Okay. So first and the foremost reason is the religious belief. Okay. Religious people tend to believe that a child being born is the will of God. It's a gift of God. Okay, so it is always a good news when a child is born. Okay, no particular religion in the world ever says to control childbirth and everything. They always encourage to have as much children as possible. Okay, now there was a reason behind that. ठीक है, reason क्या था कि when these religions were being made, अगर हम लोग world के major religion की बात करेंगे, Christianity, Islam, Hinduism, बुद्धिज्म वगैरह, हम लोग कोई भी अगर रिलीजन की बात अगर करेंगे, then these religions were made 1,000 2,000 years ago on an average. ठीक है, हिंदुइज्म तो 5,000 years ago it was made. During that time there were many people who died during childbirth. Okay, mothers used to also die. The children who were born, they also received very less nutrition, they received very less medical care. वो टाइम पे थोड़ी ये सब मेडिकल एलोपैथी वगैरह ये सब इन्वेंट हुआ था. वो टाइम पे तो बहुत सारे बच्चे मर जाते थे. ठीक है, so out of the four kids, if a couple has four kids, then there is a very good chance that one or two of those kids will die, and only one two remaining will reach the adulthood state of adulthood. So in order to ensure कि फैमिली का जो lineage है वो आगे बढ़े, ठीक है, the dynasty goes ahead, all each and every couple they went for maximum number of children. Okay, पहले के ज़माने में ऐसा इनफैक्ट मैं इतने भी पुराने टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, 40-50 साल पहले भी बहुत सारे बच्चे, अगर हम लोग डेटा निकाल के देखेंगे गवर्नमेंट डेटा, मेनी चिल्ड्रन दे डाइड ड्यूरिंग द इनिशियल 1-2 years of their age. Okay, so these religions were made at that time, and hence at that time it was very beneficial for the human beings to have as many kids as possible, so that our lineage goes on continuing. But today, if we talk about this particular method, that considering that each and every child is a gift of God and it is a will of God and everything, then it will basically lead to a very rapid increase in population that will create a burden. Okay. Next is preference for a male child. Okay, many society they generally think that the male child is the main heir of the family. ठीक है, जो स्टेटस फादर का है बाद में वो स्टेटस सन को मिलेगा, फिर वो स्टेटस उस सन के सन को मिलेगा. तो जो मेन रोल है वो मेल चाइल्ड प्ले करता है एक फैमिली के अंदर. ओके, जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड. Okay, so many role, the main role is played by the male child. So imagine karo कि there is a couple who are having one two daughters. Okay, so after having one or two daughters, they will not be stopping over there. They will be going further ahead to have a son. ये जरूरी हो जाएगा कुछ लोगों के लिए कि उन लोगों को son चाहिए ही चाहिए. तो क्योंकि preference for a male child है, तो फिर बाद में they go on having children. So this increases the population. Lack of education. Many people are illiterate, ignorant. ठीक है, उन लोग को ऐसा लगता है कि देखो गरीब लोगों का क्या सोच है कि हम लोग अगर 10 बच्चे पैदा करेंगे, 10 बच्चे जाके मजदूरी करेंगे, हर एक बच्चा दिन का 50 रुपए लाएगा, 10 into 50 विल बिकम हाउ मच, 500. सो इट बिकम्स, वो लोग वो लॉजिक को फॉलो करते हैं कि हम जितने ज्यादा हम मजदूर पैदा करेंगे उतने ज्यादा हमारे को पैसा मिलेगा. बट दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैविंग 10 laborers in your family, it is better to have one doctor. ओके, एक डॉक्टर कितने 100 लेबरर के बराबर अकेला कमा लेता है वो. ठीक है, तो वो लोग उस तरीके से नहीं देखते कि लेट अस हैव ओनली जस्ट वन चाइल्ड एंड वी विल गिव दैट चाइल्ड बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट हेल्थ केयर एंड बेस्ट एवरीथिंग, एंड दैट वन चाइल्ड विल गो अहेड एंड इट ही विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. ओके, तो वो लोग उल्टे उल्टा ही प्लानिंग करते हैं वो लोग. ठीक है, तो दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन. ओके, लिटरेसी ऑफ वुमेन कीप्स देम एट मर्सी ऑफ देयर मेल काउंटरपार्ट्स. ओके, सो वुमेन आल्सो डोंट हैव से इन दिस थिंग. दे बिलीव दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू द हस्बैंड. ओके, जो हस्बैंड बोलेगा, जो फैमिली बोलेगी, वो उस हिसाब से करना पड़ेगा. लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग फैसिलिटीज. We don't have enough family planning initiative by the government. We don't have enough people training other people about this thing. We don't have enough medical facilities. Okay, medical facilities नहीं है औरतें लोग के पास, जिसकी वजह से they go through unwanted pregnancies and everything. So there is also a problem. तो ये सब रीजन की वजह से population बढ़ता जा रहा है. ठीक है, सो अगर हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, अगर आगे जाके हमारे को अगर ये कंडीशन को इंप्रूव करना है, देन देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट वी शुड टेक. फर्स्ट इज इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन.
Okay, whatever women and children right now we have, they should be having perfect health. Okay, we have to reduce poverty. If poverty is reduced, then people will get educated. If people will get educated, then they will get a job. Okay, and those people who are having a job, if in a family, if the mother and father both of them are having a job, तो ऐसे टाइप के फैमिली लोग कभी भी 2 किड से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते. Rarely you will see कि अगर कोई फैमिली है जहाँ पे मदर फादर दोनों काम करते हैं, वहाँ पे उन दोनों ने 3-4 बच्चे पैदा कर दिए, ऐसा rarely हम देखते हैं. ठीक है ना, तो जनरली आप दे स्टॉप आफ्टर 2. अगर हम लोग देखते हैं कि कोई जगह पे अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो आइदर दे आर अनएडुकेटेड और मतलब बोलते हैं ना, द वाइफ इज द हाउस वाइफ. ओके, शी इज नॉट वर्किंग. तो ये दोनों केसेस रहता है, तब जाके बच्चे ज़्यादा होते हैं. ठीक है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, इंक्रीज ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स एक्सेस टू बेसिक ह्यूमन राइट्स. ओके, एजुकेटिंग वुमेन अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन. देयर आर मेनी बर्थ कंट्रोल वेज. ओके, देयर आर pills available, there is contraception available. These pills and contraceptions avoid child birth, मतलब ये बर्थ, तो ये सब भी हम कर सकते हैं. Ensuring access to voluntary family planning service so that women can choose to limit the family size. Okay, now suppose a particular woman wants to don't have doesn't want to have any more babies. Okay, she has had like 2-3 babies and now she's मतलब उसको अभी और बच्चे नहीं चाहिए. उसको ऐसा लग रहा है कि हम अभी अगर और बच्चे पैदा करेंगे तो हम उन लोग को बराबर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे. ओके, तो ऐसे टाइप के लोगों को वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज अवेलेबल होना चाहिए. Okay, they can go to government offices, they can get themselves medical facilities जहाँ पे there are certain methods of contraception, उसको हम लोग बोलते हैं contraception. It means avoiding having a baby. तो ये एक डॉक्टर ही करके दे सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज ये सब फैमिली प्लानिंग सर्विसेज अवेलेबल होना चाहिए. अगर ये इजीली अवेलेबल कर लेंगे देन वुमेन दे विल गो एंड दे विल गेट themselves this thing under this procedure and they will stop producing more and more babies. Okay, मेल का भी होता है, इवन मैन का जो उसको बोलते हैं हम लोग वैसेक्टोमी. वैसेक्टोमी एक प्रोसीजर है. अगर एक आदमी को वैसेक्टोमी अगर करा देंगे, वैसेक्टोमी बोलते हैं उसको, तो ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी मोर चिल्ड्रन, उसको और आगे बच्चे नहीं होते. ठीक है, तो अगर सपोज एक आदमी है उसने 3-4 बच्चे, enough sufficient, he thinks that now okay fine this is enough. Okay, now we don't want any more kids and they can go for vasectomy and they can ये तो ये सब सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए. लेकिन अज्यूम करो कि vasectomy कहीं हो ही नहीं रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में बेड्स नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो फिर vasectomy का चार्ज वो 2-3 लाख रुपए मांगेगा, तो ये गरीब लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. तो ये सर्विसेज हमें अवेलेबल करनी पड़ेगी. ओके, then rising consumption. Now I will not go through the detail in this thing, I have explained the previous chapter also. If you consider developed country like for example France, Austria, Australia, United States, Canada, Japan. Okay, in those countries people are having a very higher income compared to the developing country. तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग के पास पैसे है. अगर लोग के पास पैसे आता है तो फिर वो लोग सर्विसेज भी लेते हैं. They will install central ACs into their home, they will install 24-hour hot water geyser, they will install multiple TVs, electric appliances, diesel petrol cars, sports cars. ओके, एवरीथिंग, बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर दे प्रोड्यूस वेरी हाई अमाउंट ऑफ वेस्ट. ओके, दे आर नॉट कंसिडरिंग कि उनको क्या ज़रूरत है. दे स्टार्ट स्पेंडिंग के उनको क्या लग्जरी चाहिए. अगर ज़रूरत के हिसाब से स्पेंडिंग करें तो इतना उन लोग को स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग किसी अफ्रीकन किसी कंट्री की बात करेंगे, वो बेचारा पूरे दिन भर में एसी ना चला रहा है, ना गीजर चला रहा है, ना कुछ चला रहा है, वो चूल्हे का लकड़े पे बर्न कर रहा है. ठीक है, तो अगर हम लोग डेवलपिंग कंट्री की बात करें वहाँ पे एमिशन इज लेस, डेवलप्ड कंट्री पे एमिशन इज मोर बिकॉज पीपल आर हैविंग वे मच मोर स्पेंडिंग पावर. दे विल गो फॉर फ्लाइट्स. ओके, दे विल गो फॉर वेकेशन. ओके, अगर गरीब इंसान है वो फ्लाइट सिर्फ तभी लेगा जब उसको एकदम जरूरी हो. वो घूमने फिरने के लिए फ्लाइट नहीं लेगा, गरीब इंसान रहेगा तो. लेकिन अगर एक अमीर इंसान रहेगा, जैसी छुट्टियां आएंगी वो फ्लाइट पकड़ के यूरोप चले जाएगा, अमेरिका जाएगा, घूम फिर के आएगा. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है. द यूएस कंज्यूमर, द यूनाइटेड स्टेट्स लेस देन 5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन यूजेस अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स फॉसिल फ्यूल. तो उनके पास 5% लोग हैं और 25% वो लोग बर्न करते हैं. इमेजिन 5 times more. So they are having private cars, gas guzzling, sport utility vehicles. They will having they are having sports cars. If you go to, like for example हमारे neighborhood में अगर हम हमारे नजदीक देखेंगे, if you go to Dubai, if you go to Saudi Arabia, if you go to these extremely rich countries, you will see कि हर एक घर में BMW है, एक sports SUV है, एक Ferrari है. तो ये जो Ferrari जो गाड़ी चलती है, ये एक क्या बोलते हैं सेंट्रो या फिर एक i20 जितना माइलेज नहीं देगा. ये फरारी विल कंज्यूम अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ पेट्रोल बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट्स कार, इट्स अ परफॉर्मेंस कार. तो यहाँ पर पोल्यूशन और बढ़ जाता है. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज.
The new houses in US were 38% bigger in 2002 than 1975. So they are having bigger houses. Okay, bigger houses होने की वजह से they are consuming way much more land space. They are producing way much more waste and everything. It's basically same point. Environmental impacts of consumption. Okay, ठीक है. So condition calculation show that the planet has available 1.9 hectares of biologically productive land per person. तो अगर एक इंसान है, उस एक इंसान के लिए 1.9 हेक्टेयर्स लैंड अवेलेबल है. तो तुम अगर वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हो, फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, अगर तुमने चिकन खाया है, मटन खाया है, तो चिकन मटन जो फार्म में ग्रो होता है वहां पर भी लैंड, वाटर, वो सब के रिसोर्सेज की जरूरत होती है. वहां पर भी फूड की रिसोर्सेज की जरूरत होती है. ठीक है, अगर तुम 1 किलो मटन खा रहे हो, तो उस 1 किलो मटन खाने के लिए जो मटन का जो फार्म है, जो गोट का जो फार्म है, वहां पर कितना पानी, कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना फूड, कितना पैसा स्पेंड किया होगा. जो फैक्ट्री है वहां पे कितना कुछ कट करके पैकिंग करने के लिए कितना कुछ किया होगा. ठीक है, सो देयर फॉर एज वी इंक्रीज द कंजम्पशन, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग. अगर हम हमारा अभी करंट पॉपुलेशन में से 1.9 हेक्टेयर ही बाकी है, लेकिन और पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो और लैंड का रेशियो कम होते जाएगा. देन देयर विल बी अ पॉइंट जब एक इंसान के लिए सिर्फ 1 हेक्टेयर अवेलेबल है. 1 हेक्टेयर इज नॉट सफिशिएंट. यहाँ पे तुम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर पर पर्सन ग्रो नहीं कर सकते. लैंड का तो एक लिमिट होता है ना. So that is the reason that as the population goes on increasing, the land resource will become way too much this thing important. Okay, ecological footprints range from 9.7 hectares. कोई कोई लोग हैं, जो लोग अमीर लोग हैं, वो एक इंसान को हैंडल करने के लिए 9.7 हेक्टेयर्स लेते हैं. लाइक देयर आर सर्टेन पीपल्स हु विल कंज्यूम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ओके, जाफरान. देयर आर पर्सन हु विल बी प्रोड्यूसिंग दिस मच अमाउंट ऑफ वेस्ट. ये खाना वेस्ट जाएगा, ये खाना ही हो रहा है. और कुछ कुछ लोग हैं, वो लोग 0.47 हेक्टेयर में काम चला लेते हैं. लाइक मोजाम्बिकन spends 0.47 hectares only. Okay, so this pattern shows that rich country are living off resources of the poor ones. Okay, तो एक रिच आदमी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और उसके बदले एक पुअर आदमी को बहुत कम मिल रहा है. ठीक है, यू नो, आई गिव यू इंटरेस्टिंग फैक्ट. ओके, इन अमेरिका डू यू नो कौन से प्लांट के ऊपर सबसे ज्यादा पानी खर्चा होता है? द अभी हर एक प्लांट का वाटर कंजम्पशन अलग अलग होता है. ठीक है, जैसे राइस इज वेरी हैवी वाटर कंज्यूमिंग दिस थिंग. राइस को ग्रो करने के लिए बहुत पानी चाहिए. सो इन अमेरिका द बिगेस्ट वाटर कंज्यूमिंग प्लांट जिसपे सबसे ज्यादा ऑन ए ईयर पानी स्पेंड होता है वो है ग्रास. जबकि वो लोग ग्रास खाते भी नहीं है. पता है कौन सा वाला ग्रास? घर के सामने जो लोग गार्डन लगाते हैं, गार्डन में जो ग्रास ग्रो करते हैं ना, वो वाला ग्रास. देयर आर सर्टेन ग्रास के स्पीशीज विच आर वेरी हाई वाटर कंजम्पशन स्पीशीज. ओके, तो वो लोग वो ग्रो करते हैं अपने घर पे, ना कि खाने के लिए, बस सिर्फ एक दिखाने के लिए कि देखो हमारा गार्डन कितना खूबसूरत है. ऑन द अदर हैंड, अफ्रीका में कितने लोग हैं जो लोग पानी की कमी की वजह से, फूड की कमी की वजह से मर रहे हैं. ठीक है, सो ऑन वन एंड वी आर हैविंग रिच पीपल स्पेंडिंग thousands, millions of liters of water just so that their lawn looks beautiful. And on the other hand, we are having certain people जिन लोगों को इतना भी पानी, इतना भी खाना नसीब नहीं हो रहा कि वो लोग जिंदा रह पाए. So this shows that how developed country are creating a huge problem जो developing country के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है. ठीक है, फिर देखो एनर्जी कंजम्पशन. एनर्जी कंजम्पशन का भी देखो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि अलग अलग ये है. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये CSR CDR क्या है, एक सेकंड. फाइन, एनर्जी कंजम्पशन में नाउ विल स्टडी अबाउट डेवलपिंग नेशंस. ओके, डेवलपिंग नेशन में हम स्टडी करेंगे कैसे कैसे हमारा एनर्जी कंजम्पशन में बढ़ता जाता है. ओके, नाउ स्टेज 1. देयर आर 4 स्टेजेस. देखो यहाँ पे 4 लाइन बनाई. ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है और ये लास्ट वाला स्टेज 4 है. ओके, नाउ स्टेज 1 दैट इज द इनिशियल स्टेज. इसको हम लोग बोलेंगे प्री मॉडर्नाइजेशन. प्री मॉडर्न मतलब अभी भी प्रिमिटिव स्टेज पे, अभी कंट्री जस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ है. देयर इज अ हाई फ्लक्चुएटिंग बर्थ एंड डेथ रेट. Okay, so if you see over here, then the graph is highly fluctuating of birth and death rate. Okay, तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ये होता है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ और ये होते थे बिकॉज ऑफ देयर इज नो ग्रेट पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुआ. ठीक है, एक सेकेंड. I didn't do this demographic transition. अच्छा, let me just explain this topic in short. उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि each and every country will undergo certain stages of transitions और हम लोग वो ग्राफ
बना के दिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये हम अलग अलग कंट्री में ये पैटर्न फॉलो होते हुआ देख चुके हैं कि हर कंट्री जब डेवलपिंग से डेवलप्ड जाती है तो हमें ये 4 स्टेजेस दिखाई देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ओके, उसका स्टेज 1 होता है ये वाला स्टेज, जहाँ पे देयर इज वेरी रैपिड दिस थिंग प्री मॉडर्न स्टेज, अब तक मेडिसिन वो सब अवेलेबल नहीं हुआ है, तो डेथ रेट और बर्थ रेट में फ्लक्चुएशन चलता रहता है। ओके, तो इसकी वजह से एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, जितने लोग मर रहे हैं उतने लोग पैदा हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ता नहीं है। तो पॉपुलेशन देखो यहाँ पे इनिशियल स्टेज में फ्लक्चुएट हो रहा है लेकिन एक सेम लेवल पे मेंटेन्ड है। ओके, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय बैलेंस बिटवीन डेथ एंड बर्थ रेट। ऑल ह्यूमन पॉपुलेशन बिलीव टू हैव हैड दिस बैलेंस अंटिल द लेट 18th सेंचुरी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये बैलेंस मेंटेन्ड था, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में ये बैलेंस खत्म हो गया। ठीक है, so afterwards we are having the stage 2. Okay, let me just open the page. Okay, ये एक और पेज अभी कर लेते हैं, तो बाद में विल कीप अनदर लेक्चर एट 8 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि ऐसा सब चलता हुआ था, ये एक बैलेंस था। ये बैलेंस हम कब अटेंड किए थे? 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद से हमने जो बैलेंस अटेंड किए थे वो बैलेंस 200 साल पहले तक का मेंटेन्ड था। ओके, जब हाई डेथ रेट, बर्थ रेट भी कम था, तो पॉपुलेशन इतना एक्सप्लोड नहीं हो पाया। रीजन क्या था? लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन एंड क्योर। ओके, पीपल डिड नॉट नो दैट व्हाई चिल्ड्रन वर डाइंग, पीपल डिड नॉट नो दैट व्हाई वुमेन वर डाइंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, सो उन लोग ने जर्म थियरी, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थियरी उन्होंने बनाए नहीं थे, तो बहुत सारे डिजीज लाइक प्लेग, इन्फ्लुएंजा, और सबसे बहुत सारे लोग मर रहे थे और किसी को दवाई भी नहीं मालूम था। पुअर हाइजीन। ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम दे डिड नॉट हैव प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज। ओके, वहाँ पर सीवर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, वेस्ट को प्रोसेस करने का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, तो all of this thing led to this thing. Clean drinking water was also not available. Today we are having so many machines, so many facilities where water is cleaned before it is supplied for drinking. हमारे घर पे वो आरओ कैंट लगा हुआ है, एक्वागार्ड लगा हुआ है। वो टाइम पे, पुराने टाइम पे क्या था? मटका था, दैट्स इट। तो उसकी वजह से टाइफस, टाइफाइड, डिसेंट्री, डायरिया, बहुत सारे डिजीज हुए। और जब हो गया तो आज के टाइम पे अगर चलो किसी को डिजीज अगर हो भी गया, then that person can go to doctor and get proper medicine. वो टाइम पे medicine will also not available, तो इसके लिए poor hygiene की वजह से a lot of people died. Occasional food shortages. Okay, the food shortage also killed a lot of people. So then the population was maintained. Okay, uh, so today parts of Ethiopia are having this stability, and UK before 1760. Okay, then stage 2. Now this stage 2 shows the developing society. यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी सब डेवलप होने लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ रेट बढ़ते जाता है और डेथ रेट कम होते जाता है। बर्थ रेट बढ़ते जाता है क्योंकि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो लोग मर नहीं रहे हैं। ठीक है, सब बिकॉज ऑफ प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन दे आर ऑल सर्वाइविंग। और जो लोग बूढ़े हो गए उन लोग को भी मेडिसिन दे दे के हम लोग, उन लोग को, वो लोग मर नहीं रहे, वो लोग का भी लाइफ एक्सटेंड हो गया है। तो जो लोग पैदा हो गए वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और जो लोग पैदा हो गए हैं वो लोग अभी मर नहीं रहे। सो बर्थ रेट इंक्रीजेस, डेथ रेट डिक्रीजेस। ओके, वो ग्राफ में देखो, एक ग्राफ ऊपर जा रहा था, एक ग्राफ नीचे जा रहा था। जो ऊपर जा रहा था वो बर्थ वाला ग्राफ है, जो नीचे आ रहा था वो डेथ वाला ग्राफ है। सो दिस शोज राइज इन पॉपुलेशन कॉज बाय डिक्लाइन इन द डेथ रेट। इन यूरोप द डिटेल डेथ रेट डिक्लाइन इन द अर्ली 18th सेंचुरी। ठीक है, फिर 100 years तक का ये चलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या? यूके फ्रॉम 1760 टू 1860, ये 100 साल तक का यूके वाज इन स्टेज 2। पेरू, श्रीलंका अभी स्टेज 2 में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इम्प्रोविशमेंट इन फूड सप्लाई brought about by higher yields, our agricultural practices were improved in this agricultural revolution. So initially people used traditional methods like cows and natural seeds and natural fertilizers and everything, but now everyone is using, because of industrial revolution, tractors, machines. There are artificially modified, genetically modified seeds. Okay, there are chemical fertilizers. Okay, we are having new technology where we can control कि हमारा कितना प्रोडक्शन होगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि खाने का भी सप्लाई बढ़ गया है, तो भूख से जो लोग मरने लग गए वो लोग कम हो गए। तो ऐसा नहीं कि आज कोई भूख से मर नहीं रहा, बट पहले के टाइम पे अगर 1 करोड़ लोग मर रहे थे भूख से, तो आज के टाइम पे 10 लाख लोग मर रहे हैं, तो 90 लाख पीपल लाइफ हैज बीन सेव्ड। ठीक है, देन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ में हम लोग देखेंगे हमारा जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है, हॉस्पिटल्स, ये क्लिनिक्स वगैरह, देर इजीली अवेलेबल। इवन टुडे वी आर सीइंग दैट सो मेनी पीपल हु आर गेटिंग कोरोना वायरस। तो क्या होता है कि वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर बेड अवेलेबल है तो उनको बेड मिलता है, उनके घर पे गवर्नमेंट से लोग आते हैं, उनके घर पे बीएमसी सैनिटाइजेशन करके जाती है, पूरा एरिया क्लीन करके जाती है, वो सील करके जाती है।
ठीक है, तो ये सब प्रोसेस कौन कर रहा है? सब गवर्नमेंट खुद सामने से कर रही है। ठीक है, दे विल कम, दे विल आस्क यू कि आपको कौन कौन से लोग से मिले हैं, ट्रेसिंग करेंगे वो लोग, फिर उन लोग को भी जाके टेस्ट करेंगे वो लोग कि आप जिसके कांटेक्ट में आए हैं उसको कोरोना हो गया है तो आपको भी टेस्ट कराना पड़ेगा। So we are seeing that there is huge development in public health facilities. Okay, and standard of living is also increased. Okay, let us do just one more page. Okay. Mm. Okay, then stage three. In stage three, the population moved towards the stability to through a decline of birth rate. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी स्टेज थ्री में हम चले जाते हैं। स्टेज थ्री में अभी फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, चाइना, क्यूबा और यूके इन 1880 to 1940 इट वाज इन स्टेज थ्री। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि a lot of people have now become developed, they are educated and they are started to join jobs and everything. So because of this literacy, because of this knowledge and everything, they will stop producing more and more child. तो बर्थ रेट कम हो जाएगा। जैसे अब मैंने बताया कि अगर कोई भी एक फैमिली जहाँ पे मदर फादर दोनों जॉब कर रहे हैं, मदर हैज टू गो टू ऑफिस मॉर्निंग में, फादर आल्सो हैज टू गो टू ऑफिस मॉर्निंग में, तो बच्चा का ख्याल कौन रखेगा? तो ये कपल बच्चा पैदा करने से पहले सोचेंगे वो लोग, उन लोग के लिए इतना बच्चा पैदा करना आसान नहीं रहेगा। तो अगर एक सोसाइटी अगर उस लेवल पे पहुंच जाती है तो वहां पर हम स्टेज थ्री बोलेंगे। इन रूरल एरिया चाइल्ड डेथ कंटिन्यूज टू फॉल। Increasing urbanization changed the traditional values placed upon the fertility and the value of children in rural society. Urban living also raises the cost of dependent children to a nuclear family. People begin to access more rationally just how many children they desire or need. So we are seeing that as the children increases, then the family will start thinking कि अभी हमें इतना ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए क्योंकि कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। अभी देखो बॉम्बे जैसे शहर में घर कितना एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक घर लेना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर एक फैमिली वहाँ पे अगर 4-5 बच्चे हैं तो तुम्हें बड़ा घर चाहिए रहेगा ना, एक रूम के अंदर तो 4-5 बच्चे और मम्मी-डैडी सब लोग एक साथ नहीं रह सकते। तो जब बच्चा प्लानिंग करेंगे तो वो लोग उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। इंक्रीजिंग फीमेल लिटरेसी, वुमेन आर नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर एजुकेटेड, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर लिटरेट, दे आर जॉइनिंग जॉब्स, दे आर जॉइनिंग वर्क, सो दे आर आल्सो डिसाइडिंग कि उन लोग को बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड मोर वुमेन आर नाउ पुटिंग देयर करियर एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, विच इज अ गुड थिंग। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिकॉज फीमेल्स आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स देयर गोल्स, they don't think about producing children at a very early age. Okay, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्नोलॉजी, फिर जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे अभी दवाइयाँ आती है, पिल्स आती है। ठीक है, देयर आर मेनी मेथड्स जहाँ पे जो प्रेगनेंसी से वो अवॉइड किया जा सकता है। ओके, तो उसकी वजह से भी चाइल्ड बर्थ कम हो रहा है। ओके, देन लास्ट स्टेज फोर। स्टेज फोर इज कैरेक्टराइज बाय द स्टेबिलिटी। ओके, तो देखो इनिशियली स्टेज वन में बैलेंस रहता है, स्टेज टू में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, स्टेज थ्री में पॉपुलेशन थोड़ा कम होगा, लेकिन कम होते होते एकदम खत्म भी नहीं हो जाएगा। फिर स्टेज फोर में इट विल अगेन रीच अ पर्टिकुलर बैलेंस। ओके, ड्यूरिंग द स्टेज देयर आर बोथ लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, तो बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं बिकॉज फैमिलीज आर प्लानिंग, दे डोंट वांट मोर एंड मोर किड्स। और बहुत कम लोग मर भी रहे हैं बिकॉज द सोसाइटी इज वेरी एजुकेटेड, डेवलप्ड एंड ऑल द ओल्ड पीपल आर गेटिंग मेडिसिन एंड प्रॉपर फैसिलिटीज। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बर्थ रेट भी कम हो जाएगा, डेथ रेट भी कम हो जाएगा, और बर्थ रेट डेथ रेट दोनों कम होने की वजह से अपना पॉपुलेशन एक बैलेंस लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, इट इज हैपनिंग इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली एंड जापान। तो वहाँ पर ऑलरेडी वी आर सीइंग दिस कंडीशन इज थ्रेट टू मेनी इंडस्ट्रीज दैट रिलाई ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कोई इंडस्ट्री डिपेंड कर रही है, ठीक है, जैसे कंजम्पशन इंडस्ट्रीज, गुड्स इंडस्ट्रीज, क्लोथ, देखो कपड़े का इंडस्ट्री पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा पॉपुलेशन अगर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ शर्ट साल में बिकेगा। पॉपुलेशन बढ़ के अगर 10 करोड़ का तो 10 करोड़ बिकेगा। ठीक है, तुम एक इंसान को साल में कितनी बार तुम शर्ट बेचोगे? ठीक है, हर हर रोज तो नया नया शर्ट खरीदने नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये होने की वजह से एक थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल ग्रोथ थोड़ा रुक सकता है। This condition is threat to many industries that rate may remain consistently low for increasing slightly due to the lifestyle decreases due to low exercise level and high obesity and an aged population in developing countries. तो ये भी होता है, high lifestyle, obesity, all those children who continuously have junk food, fast food, खा खा के मोटे हो जाते हैं। I remember that when I was a kid, when I used to go to school, there were never so many fat children. Okay, it is very rude कॉल अ चाइल्ड फैट, बट ऑब्वियसली बट दैट इज अ फैक्ट। ओके, मतलब कितने सारे बच्चे लोग का भी मतलब ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ऑफ वेरी पुअर ईटिंग हैबिट्स। तो दिस इज 1940 जापान, यूएसए, यूके, ये सब अभी हो रहा है।
ठीक है। एंड लास्ट स्टेज 5, द ओरिजिनल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हैज जस्ट 4 स्टेजेस बट एडिशनल स्टेज हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड। तो कोई भी कंट्री अब यहाँ तक नहीं गया है, ठीक है। ये अभी प्रपोज किया जा रहा है कि एक और स्टेज 5 हो सकता है, ठीक है। जैसे कि स्वीडन, स्वीडन एक नेगेटिव ग्रोथ रेट में जा रहा है। मतलब अभी देखो स्टेज 4 में हमने देखे थे कि लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, द सिस्टम इज बैलेंस्ड। बट स्वीडन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है कि वहां पर बर्थ इज लेस बट डेथ इज लिटिल बिट मोर देन बर्थ। तो ज़्यादा लोग मर रहे हैं और कम लोग पैदा हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा, पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो स्वीडन में पॉपुलेशन अगर कम हो रहा है और ऐसे अगर 50-100 साल तक का चलता रहा तो वहाँ पर लोग बचेंगे नहीं। ओके, अगर ये सेम चीज अगर चलता रहा, द फॉल इन बर्थ रेट may be due to the increasing emancipation and the financial independence of women. Women are more career oriented, they don't want to produce more and more children, and the aging population may increase the death rate, क्योंकि अभी बूढ़े लोग डेथ रेट तो आफ्टर पर्टिकुलर एज वो लोग मर जाएंगे। Countries like Romania are also experiencing a falling population growth at 10.7 birth with 1,000 population and death rate at 11.7। तो birth 10.7 death 11.77, तो death ज़्यादा है birth कम है। तो रोमानिया स्वीडन यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। The last topic, transition stage of developed and developing nation. So this developing and developed nation का अलग अलग होता है। Developed nation is going in population reduction and developing nation is going for पॉपुलेशन इंक्रीज। दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। एक डेवलप्ड नेशन का ग्राफ पॉपुलेशन कम होता रहता है क्योंकि वहाँ पे लोग एजुकेटेड है, वो लोग और बच्चे पैदा पैदा नहीं करना चाहते। और डेवलपिंग नेशन में वो लोग का ग्रोथ बढ़ते रहता है, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द लेक्चर राइट नाउ, नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कीपिंग एट 8 o'clock, ओके।